Hello everyone. Once again, welcome to my YouTube channel Physics with Dr. Sanjay Bhargav. In this video, we are going to discuss about microwave Faraday rotation and also discuss the devices which use it like gyrator, isolator and circulator. If you remember, we discussed about the origin of microwave Faraday rotation in our earlier video, where the origin was attributed when a wave propagates in the direction of magnetization. Then we obtained the concept of microwave Faraday rotation. So we consider here a plain TEM wave propagating in a lossless ferrite medium मैग्नेटाइज्ड इन z डायरेक्शन. तो यहां पर हम एक प्लेन TEM वेव को इमेजिन करते हैं जो लॉसलेस फेराइट मीडियम में ट्रैवल करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज द z डायरेक्शन. द सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स कॉन्स्टिट्यूट नॉर्मल मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन अ मैग्नेटाइज्ड फेराइट. ऐसा हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स जो है वो नॉर्मल मोड ऑफ प्रोपोगेशन मैग्नेटाइज्ड फेराइट में होते हैं. तो यहां पर हम एक प्लेन वेव को दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स में डिकम्पोज कर सकते हैं. तो वही बात हमने यहां पर कही है, अ प्लेन वेव कैन बी डिकम्पोज्ड into the sum of left and right-handed circularly polarized waves having propagation constant beta negative and beta positive. The plane of polarization of linearly polarized wave rotates as the wave propagates through the magnetized medium because beta negative is not equal to beta positive. जैसे जैसे वेव प्रोपोगेट करती है तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड वेव वो रोटेट होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड रोटेशन और राइट हैंडेड रोटेशन का प्रोपोगेशन कांस्टेंट अलग अलग होता है. दिस इज नोन एज माइक्रोवेव फैराडे रोटेशन. बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव आर फंक्शंस of direction and magnitude of magnetization, are functions of direction and magnitude of magnetization and not of the direction of propagation. तो जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन. पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पर बीटा प्लस और बीटा नेगेटिव की कोई निर्भरता नहीं है. इसीलिए हम बोलते हैं रोटेशन इज नॉन रेसिप्रोकल. द लीनियरली पोलराइज्ड वेव is considered to be made up of a left and a right-handed circularly polarized wave and is given by. एक लीनियरली पोलराइज्ड वेव को दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव का बना हुआ माना जा सकता है, एक लेफ्ट हैंडेड और दूसरा राइट हैंडेड. उनके जो इक्वेशंस हो सकते हैं वो यहां पर हमारे सामने हैं. E vector is x cap E0 can be written as x cap plus j y cap E0 by 2 plus x cap minus j y cap E0 by 2 at z is equal to 0. The components propagate with phase constants beta plus and beta negative. So the wave at z is equal to L is written as E is equal to x cap plus j y cap E0 by 2 e power minus j beta negative L plus x cap minus j y cap E0 by 2 e power minus j beta plus L. x cap को कॉमन ले लीजिए तो E0 by 2 will get e power minus j beta negative L plus e power minus j beta positive L plus j y cap E0 by 2 e power minus j beta negative L minus of e power minus j beta positive L. So e can be written as, just simplify E0 by 2 e power minus j beta negative plus beta positive L by 2 और x cap के साथ में e power minus j beta negative beta positive L by 2 plus e power j beta negative
माइनस बीटा पॉजिटिव एल बाई टू प्लस जे वाई कैप ई पावर माइनस जे बीटा नेगेटिव माइनस बीटा पॉजिटिव एल बाई टू माइनस ऑफ ई पावर जे बीटा नेगेटिव माइनस बीटा पॉजिटिव एल बाई टू। इनको हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो E0 ई पावर माइनस जे बीटा नेगेटिव प्लस बीटा पॉजिटिव एल बाई टू और अंदर एक्स कैप कॉस बीटा पॉजिटिव माइनस बीटा नेगेटिव एल बाई टू माइनस ऑफ वाई कैप साइन ऑफ बीटा पॉजिटिव माइनस बीटा नेगेटिव एल बाई टू। ये जो रिजल्टेंट वेव है दिस इज लीनियरली पोलराइज्ड वेव that has undergone a phase delay of beta negative plus beta positive L by 2। ये phase delay आ गया यहां पर। Second, the angle that the new plane of polarization makes with the old x-axis is theta equals tangent inverse EY by EX is equal to tangent inverse minus of tangent beta plus minus of beta negative L by 2। That is minus of beta positive minus beta negative L by 2. The negative sign shows a phase delay. If same traveling wave propagates in the negative direction, then plane of polarization continues to rotate in the same direction. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ट्रैवलिंग वेव नेगेटिव डायरेक्शन में भी प्रोपोगेट करे तो भी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम डायरेक्शन में रोटेट होता रहेगा। इसीलिए हमने कहा है इफ द वेव ट्रेवल्स बैक टू z इज इक्वल टू 0 दैट इज इन द नेगेटिव z डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस l देन ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज नॉट रेस्टोर्ड। इंस्टेड द वेव विल बी arriving back at z is equal to 0 polarized at an angle 2 theta relative to the x-axis। तो नेगेटिव z डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने पर भी रोटेशन का डायरेक्शन वही रहेगा। अगर जाते वक्त l डिस्टेंस ट्रैवल किया तो और वापस आते वक्त l डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन जिससे कि रोटेशन आएगा वो थीटा की जगह 2 थीटा आ जाएगा। दिस इज बिकॉज बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जो हमारे प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पर अपनी निर्भरता रखते ही नहीं है। द फेज ऑफ प्रोपोगेटिंग वेव इज डिलेड बाय एन अमाउंट बीटा नेगेटिव प्लस बीटा पॉजिटिव बाय 2 रेडियन पर मीटर। जो वेव आपकी है उसके अंदर एक फेज डिले उत्पन्न हो जाएगा और वो फेज डिले कितना आएगा बीटा नेगेटिव प्लस बीटा पॉजिटिव अपॉन 2 एंड द यूनिट इज रेडियन पर मीटर। अब फैराडे रोटेशन पर बेस्ड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोवेव डिवाइसेस हैं। उसमें पहला डिवाइस जिसको हम पिक करेंगे वो है गायरेटर। गायरेटर क्या है? गायरेटर इज अ टू पोर्ट नॉन रेसिप्रोकल फेज शिफ्टर with a relative phase difference of 180 degree for transmission from forward to backward port as compared to the phase shift for transmission from backward to forward post. A gyrator uses non-reciprocal property of a Faraday rotation. तो gyrator क्या है? एक टू पोर्ट नॉन रेसिप्रोकल फेज शिफ्टर है जिसमें एक रिलेटिव फेज डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा 180 डिग्री का। किस किस के बीच में? when the transmission is from forward to backward port as compared to the phase shift when the transmission is from backward to forward post. गायरेटर फैराडे रोटेशन की नॉन रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को यूज करके इस चीजों को अचीव करता है। A typical microwave gyrator consists of a rectangular guide with a 90-degree twist connected to a circular guide, which in turn is connected to another rectangular guide at the end. The two rectangular guides have the same orientation at port number 1 and 2. देखिए ये तो है आपके पास में पोर्ट नंबर 1, ये है पोर्ट नंबर 2। जैसा ओरिएंटेशन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है वैसा ही ओरिएंटेशन यहां पर दिखाई देगा।
ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिसमें 90 डिग्री का ट्विस्ट है, ये सर्कुलर वेवगाइड के साथ कनेक्टेड है और सर्कुलर वेवगाइड देन इज कनेक्टेड टू अनदर रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ये माइक्रोवेव गायरेटर है विद 90 डिग्री ट्विस्ट। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। द सेंट्रल सर्कुलर गाइड कंटेन्स अ थिन सिलेंड्रिकल फेराइट रॉड विद टेपर्ड एंड्स। तो ये यहां पर जो सर्कुलर वेवगाइड है इसके सेंटर में एक फेराइट रॉड रखी हुई है जिसके दोनों किनारों को पॉइंटेड या टेपर बना दिया गया है। टेपर हम इसलिए करते हैं ताकि वहां पर एनर्जी का कोई रिफ्लेक्शन हमें देखने को ना मिले। A static magnetic field B0 is applied so as to produce 90 degree Faraday rotation of TE11 dominant mode in the circular waveguide। यहां पर हम एक स्टैटिक फील्ड B0 लगा देते हैं जो 90 डिग्री का रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। किसमें करेगा? TE11 डोमिनेंट मोड, जो सर्कुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड है। वी कंसिडर द प्रोपोगेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट by virtue of the twist of the waveguide, the plane of polarization of the wave coming from the left is rotated counterclockwise by 90 degree। तो हम क्या लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोपोगेशन को कंसिडर करते हैं। हमने बोला था इनपुट साइड में क्या है? रेक्टेंगुलर वेवगाइड विद अ 90 डिग्री ट्विस्ट। तो ये 90 डिग्री ट्विस्ट क्या करेगा? जो वेव इसमें एंटर करती है उसके पोलराइजेशन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है फेराइट में पहुंचने से पहले। और फिर फेराइट क्या करेगा? वो एक एडिशनल 180 डिग्री का रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो जो लेफ्ट से राइट जा रही है उसके अंदर टोटल 180 डिग्री का रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखिए यही चीज हमने यहां लिखी है। वी कंसिडर अ वेव प्रोपोगेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट by virtue of the twist of the waveguide, the plane of polarization of the wave coming from left is rotated counterclockwise by 90 degree before reaching the ferrite. The ferrite produces an additional 90 degree rotation. Thus wave propagating towards right is inverted or is shifted in phase by 180 degree. ये हमने यहां पर भी बता रखा है। देखिए ये इंसिडेंट वेव है जिसका पोलराइजेशन वर्टिकल है। जैसे ये 90 डिग्री ट्विस्ट में से पास होगी तो देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलराइजेशन रोटेट हो गया। फिर ये इसमें से पास होगी फेराइट में से, तो एडिशनल 90 डिग्री का रोटेशन देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। और वर्टिकली डाउनवर्ड आने के बाद ये पोर्ट 2 से पास होकर हमें आउटपुट के रूप में मिल जाएगी विद अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। अब यहां पर देखिए ये इंसिडेंट वेव अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये वाला पोलराइजेशन इंसिडेंट हुआ। जब फेराइट में से पास करेंगे तो ये 90 डिग्री फेराइट में से पास होने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो ये जो पोलराइजेशन था ना ये रोटेट होकर ऐसे हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपको ये रोटेटेड पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है। और जब ये 90 डिग्री ट्विस्ट में से पास होगा तो वापस से वर्टिकल पोलराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इनपुट और आउटपुट में कोई फेज चेंज नहीं मिल रहा है, इसलिए केवल एक साइड के ट्रांसमिशन के अंदर 180 डिग्री का फेज चेंज मिलेगा, जबकि रिवर्स करने पर किसी भी प्रकार का कोई फेज चेंज हमें नहीं मिलेगा। यही बात हमने यहां पर कही है। फॉर अ वेव मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट the Faraday rotation is still 90 in the same sense, and this is cancelled by the rotation in the twisted section which is 90 degree now in the clockwise direction। तो फेराइट तो नॉन रेसिप्रोकल बिहेवियर शो करता है, पर रेजिस्टेंस जो ट्विस्ट है वो 90 डिग्री का रोटेशन अब उल्टी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा ताकि पुराने 90 डिग्री के रोटेशन को कैंसिल करके कोई रोटेशन ना रहे ये सुनिश्चित करेगा। Thus, for transmission from right to left, there is no rotation of the plane of polarization. Thus, the reciprocal behavior of the gyrator
increases the length of a line in a given direction by lambda by 2 as compared to the other direction. तो गायरेटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ द गायरेटर को एक डायरेक्शन में जहां पर 180 डिग्री का फेस चेंज प्रोड्यूस हो रहा था, उस डायरेक्शन में लैम्डा बाय 2 उसकी इलेक्ट्रिकल लेंथ को इंक्रीज कर दिया. किसकी कंपैरिजन में, रिवर्स डायरेक्शन की कंपैरिजन में, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई फेस चेंज नहीं प्रोड्यूस होता है. अब सेकंड डिवाइस कौन सी है, उसका नाम है आइसोलेटर. आइसोलेटर क्या करेगा, अब देखिए, an ideal isolator allows the complete transmission between its two ports in one direction of propagation while no transmission occurs in the other direction. आइसोलेटर का मतलब एक तरीके से केवल एक डायरेक्शन में कंप्लीट ट्रांसमिशन और बाकी सब डायरेक्शन में कोई ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है. इसीलिए आइसोलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिलाइन. Isolators are one-way transmission devices and that is why they are called as uniline. Isolators permit unattenuated transmission in one direction while offer high attenuation to the transmission in opposite direction. Isolators when used between generator and load, अगर इनको जनरेटर और लोड के बीच में कनेक्ट कर दिया जाए तो they deliver maximum available power to the load and does not transmit reflection from load back to the generator output terminals. तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर देंगे लोड को, पर उधर से कोई रिफ्लेक्शन लोड की तरफ आने ही नहीं देंगे. Thus जनरेटर सीज अ मैच्ड लोड. इस प्रकार से जनरेटर लोड मैचिंग अचीव कर लेता है. द पावर आउटपुट वेरिएशन एंड फ्रीक्वेंसी पुलिंग विद चेंज इन लोड इंपीडेंस आर अवॉइडेड. इस प्रकार से कोई भी आउटपुट पावर वेरिएशन होगा ही नहीं और फ्रीक्वेंसी का चेंज वो भी हमें किसी भी प्रकार से देखने को मिलेगा ही नहीं लोड इंपीडेंस के अंदर. द फैराडे नेट रोटेशन आइसोलेटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड विद अ 45 डिग्री ट्विस्ट. पहले क्या था, 90 डिग्री ट्विस्ट था. With a 45 degree twist connected to a circular waveguide in which a 45 degree Faraday rotation magnetized ferrite is kept. This in turn is connected to a rectangular waveguide at the other end. The two rectangular waveguides have the same orientation at the input port. Two resistive tapered vanes are introduced in the input and the output guides to absorb the field that is polarized with electric field parallel to the wider dimension of the guide. तो वहां पर दो रेजिस्टिव वेन्स को हम वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं इनपुट और आउटपुट में. वो उनका काम क्या है, they will absorb any polarization of electric field which is parallel to the wider dimension of the guide. Let us see. देखिए ये जो है ना ट्रायंगुलर टाइप ऑफ थिंग्स, इनको हम बोलते हैं रेजिस्टिव वेन्स. ये इनपुट पोर्ट, ये आउटपुट पोर्ट. यहां पर 45 डिग्री का ट्विस्ट और ये फेराइट रॉड किस लिए रखी है, टू प्रोड्यूस 45 डिग्री रोटेशन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इट. वर्किंग और ऑपरेशन ऑफ एन आइसोलेटर. A TE10 dominant mode in the rectangular waveguide excites a TE11 linearly polarized mode in the circular waveguide and vice versa. तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड का जो डोमिनेंट मोड है वो है TE10 मोड. ये क्या करता है, ये एक TE11 लीनियरली पोलराइज्ड मोड को सर्कुलर वेवगाइड में एक्साइट करने का काम करता है. इसका उल्टा भी पॉसिबल है. A wave propagating from left to right has its polarization rotated by 45 degree in counterclockwise direction by 45 degree twist section. तो लेफ्ट टू राइट जो भी वेव जाएगी उसके अंदर उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री से ट्विस्ट हो जाएगा. क्यों, वहां पर एक 45 डिग्री ट्विस्ट का एक सेक्शन है. एंड 45 डिग्री क्लॉकवाइज बाय फैराडे रोटेशन इन मैग्नेटाइज्ड फेराइट. The wave will thus emerge with correct polarization at the output port.
The incorrect polarization or higher modes are absorbed by the attenuating vein kept at the output. अब देखिए वापस से चलते हैं अपन फिगर में। यहां से देखिए ऐसे वेव जाएगी तो यहां पर 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको देखने को मिलेगा ट्विस्ट सेक्शन के कारण। और फेराइट रॉड क्या करेगी, इसको वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट करके ओरिजिनल पोलराइजेशन को रेस्टोर कर देगी और ये सेकंड पोर्ट के पैरेलल आएगा तो आराम से पास होकर एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा कोई हायर मोड आया या फिर कोई और पोलराइजेशन आया तो ये रेजिस्टिव वेन उसको एब्जॉर्ब करके खत्म कर देगी। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ इट। A wave traveling from now right to left will suffer a Faraday rotation of 45 degree while passing through the ferrite medium and an additional 45 degree while passing through the twist section. Thus total rotation is 90 degree in clockwise direction that is produced. The wave will have electric field parallel to the resistive card and is therefore absorbed. Now let us go back to the figure. देखिए यहां से जब हम जाएंगे तो ये फेराइट रॉड में से पास करने पर इसका रोटेशन 45 डिग्री और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आ गया। और जब ये रेजिस्टिव रॉड से जाएंगे या ट्विस्ट से जाएंगे तो 45 डिग्री और इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन आएगा। तो ये वाला जो वेक्टर है आप देखिए इस रेजिस्टिव कार्ड के पैरेलल है, इसीलिए इसका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाएगा। अगर मान लीजिए रेजिस्टिव कार्ड नहीं होते तो क्या होता? इफ द रेजिस्टिव कार्ड वाज एब्सेंट देन वेव एट पोर्ट नंबर 1 वुड बी रिफ्लेक्टेड ड्यू टू इनकरेक्ट पोलराइजेशन. Due to multiple reflections within the isolator, there will be transmission in both the directions. अगर रेजिस्टिव कार्ड नहीं होते तो इनकरेक्ट जो पोलराइजेशन वहां पर पहुंच रहा है उसका एब्जॉर्प्शन होने की जगह पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता और वहां पर ट्रांसमिशन एक डायरेक्शन की जगह दोनों डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता। इसीलिए हम आइसोलेटर को बोलते हैं यूनिलाइन, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन करता है। इट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट मैचिंग बिटवीन द जनरेटर एंड द लोड। तीसरा डिवाइस जो हमें यहां पर पढ़ना है वो है सर्क्यूलेटर। लेट अस सी। A circulator is a multi-port device which allows complete transmission between adjacent arms taken in one sense of circulation only. A signal incident in arm or port number 1 is transmitted unattenuated to arm 2. A signal incident in arm 2 is transmitted to arm 3 and so on. तो सर्कुलेटर क्या है? एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है जो कंप्लीट ट्रांसमिशन होने देता है एडजेसेंट आर्म्स के अंदर इन वन सेंस ऑफ सर्कुलेशन। पोर्ट नंबर 1 पर जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी वो आर्म नंबर 2 में अनअटेन्युएटेड कपल हो जाएगी। इसी तरह सेकेंड आर्म में जो एनर्जी कपल हुई वो फाइनली वुड बी ट्रांसमिटेड टू द थर्ड, फ्रॉम थर्ड टू द फोर्थ एंड सो ऑन। इसका मतलब है एन आइडियल सर्कुलेटर इज अ मैच्ड डिवाइस, is a matched device with all ports except one is terminated in matched loads. तो यहां पर हम एक 4 पोर्ट सर्कुलेटर को पढ़नेंगे। A 4 port Faraday rotation circulator consists of a rectangular waveguide at port number 1, a circular waveguide containing 45 degree ferrite rotation, a 45 degree twist and a rectangular waveguide port number 2. Port number 3 is a rectangular waveguide which is perpendicular to the circular waveguide near port number 1 such that narrow dimension of port number 3 is parallel to port number 1. अब देखिए ये आपके पास यहां पर पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 1 के लिए हमने क्या बोला है? रेक्टेंगुलर वेवगाइड रहेगा। किसके साथ कपल हो गया? यहां पर आकर सर्कुलर वेवगाइड के साथ में कपल हो गया।
तो सर्कुलर वेवगाइड के अंदर क्या क्या है, 45 डिग्री का एक फेराइट रॉड है जो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, 45 डिग्री का ट्विस्ट प्रोड्यूस करेगा, और फिर पोर्ट नंबर 2 पर एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड सपोर्टेड है। ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड यहां पर सपोर्टेड है। ये फेराइट रॉड विच वुड बी प्रोड्यूसिंग 45 डिग्री रोटेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन वी हैव पोर्ट नंबर 3 हियर. It is also a rectangular waveguide which is perpendicular to the circular waveguide near port number 1 such that narrow dimension of the port 3 is parallel to port number 1. फिर port number 4 वो भी यहां पर है, is again a rectangular waveguide perpendicular to port number 2 with narrow dimension parallel to the broader dimension of the waveguide. तो ये हमारा construction part है to achieve perfect matching at all the ports and is located at the side of the port number 2 relative to the 45 degree Faraday rotator. So this was construction and this represents the working. The TE10 mode incident in port number 1 excites a linearly polarized TE11 mode in the circular waveguide. This linearly polarized wave is rotated by 45 degree in passing through the ferrite rotator and thus excites TE10 mode in arm number 2. Thus, the wave entering port 1 has correct polarization to be transmitted through port number 2, but not through port number 3 and 4. Similarly, the wave incident at port 2 has correct polarization to be transmitted out of port 3, but not from the port number 2 and 4. An ideal circulator is a perfectly matched device. देखिए यहां पर पोर्ट नंबर 1 में ये वाला पोलराइजेशन परमिसिबल है, पोर्ट नंबर 3 में ये वाला है, पोर्ट नंबर 4 में ये है और पोर्ट नंबर 2 में ये है। तो जब हम 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो देखिए वर्टिकल पोलराइजेशन है पोर्ट नंबर 1 पे, फिर उसके बाद में 45 डिग्री का फैराडे रोटेशन विच मेक्स इट कंपैटिबल विद पोर्ट नंबर 2 एंड दैट इज व्हाई energy is completely transmitted from port number 2 to port number 1 to port number 2. Now from port number 2 we are supposed to move through port number 3. So देखिए यहां पर जब ये फैराडे रोटेशन होगा तो अनदर 45 डिग्री का एक रोटेशन आएगा और ये 45 डिग्री के रोटेशन से क्या होगा, ये वाला पोलराइजेशन इसके पैरेलल हो जाएगा, तो 2 से एनर्जी 3 में कपल हो जाएगी। जब हम 3 से 4 जाते हैं तो देखिए ये पोलराइजेशन है ना 3 में, ये क्या होगा जब फैराडे रोटेशन करेगा तो वापस से 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा और ये वाला वेक्टर जो है वो इसके पैरेलल है, इसीलिए देयर वुड बी कपलिंग बिटवीन 3 to 4। और जब 4 से वापस 1 की बात करें तो देखिए 4 से जब हम 1 में जाते हैं तो 45 डिग्री का वापस से रोटेशन, तो वर्टिकल पोलराइजेशन विच मैचेस विद अलाउड पोलराइजेशन ऑफ पोर्ट नंबर 1, इसीलिए एनर्जी यहां पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बेसिकली जो हमारा यहां पर डिवाइस है 4 पोर्ट सर्कुलेटर, इट्स अ परफेक्टली मैच डिवाइस। फर्स्ट से सेकंड में परफेक्ट मैचिंग है, सेकंड से थर्ड में मैचिंग है, थर्ड से फोर्थ में है और फोर्थ से वापस 1 में। तो इस प्रकार से 4 port circulator can be called as a perfectly matched device. So students, उम्मीद करते हैं कि आपको माइक्रोवेव फैराडे रोटेशन और उससे एसोसिएटेड डिवाइसेस का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।